Yes, sir. Yes, Yes. sir. PPT model 1 crystal Yes, sir. structure. Yes, sir. Okay. Now we need to think about this crystal structure. As we discussed in the previous lecture, that is the crystal structure is very important thing for everyone. How? For every branch we require this crystal structure. How we require this crystal structure for every branch? Anyone? ये क्यों हमें इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिलेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर सभी के लिए क्यों हमें या हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलने के बाद मटेरियल्स हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस मटेरियल्स एवरीवेयर मटेरियल्स को किस तरह से यूज करते हैं हम हेलो मटेरियल्स किस केमिकल electrical sorry chemical I think EXTC IT all students require the materials for constructing the different types of components or we are able to say that is used for your print. Now we are observing here that is material types. What we have shown there that is the material types. Elements and their chemical compounds are found in three states. कौन से states से आपको ये आपने पढ़ा 12th में पढ़ा है आपने हर जगह पर पढ़ा हुआ है कौन से three states अवेलेबल है that is solid, Solid, liquid, liquid gas. and gas. Solid, liquid, gas. How we are able to characterize this one? It is rigid. It is rigid. It having some fixed shape. It is having some fixed value. As shown in the figure, what happens? It is rigid in the paper के सभी components का एक दूसरे के साथ I'm going to say that the atoms are connected with each other. So that's what we are able to say it is rigid. It is having fixtures. It is having fixtures. This Sir, your voice is breaking. shape may audio lag हो रहा vary है। when you are going to apply Sir, your some voice is sir, not voice when log. clear. we are going to apply some temperature, then what Voice is happens? breaking, It sir. may possible to change its shape. हेलो हेलो Hello, सर समझ में नहीं आ रहा सर ऑडियो लैग हो रहा है बहुत सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर सर को आवाज आ रहा है कि नहीं अपना लैग हो रहा है आपका is for constructing the compounds. किसी का तो हेडफोन चालू है ऑफ कर दो हेडफोन बाकी स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन नहीं है प्रेजेंटेशन नहीं है ओके सांगितलं का पकोडी दिली आम्ही प्रेजेंटेशन देंगे क्या शेयर स्क्रीन सर क्या जैसे कितने Yes, जैसे कितने अभी मिल रहा है presentation. Are you getting the PPT? यस सर यस सर यस सर Yes, sir. Okay. So हम यहाँ पर जो material types देख लेते हैं that is the solid, liquid and gas. तो liquid में आप ये observe करते हैं कि क्या observe करते हैं कि atoms जो रहते हैं सूरज माइक बंद करना अच्छा माइक चालू रहा है ना मारो ओके तो आप जो एटम्स ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें लिक्विड में क्या ऑब्जर्व करते हैं दे आर नॉट रिजिड दे आर नॉट एट पर्टिकुलर पोजीशन व्हाट हैपेंस they are able to move from one location to another location so we are able to say that they are not rigid they are having not fixed shape as आप जो ऑब्जर्व करते हैं कि जो आप वेसल आप जो यूज करेंगे या जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर होगा उस तरह से क्या होता है कि दैट इज
it may change its shape and no fixed volume. जिससे shape change होगा, volume भी क्या होगा आपका change होते हुए जाएगा. Okay. So in gas also we are observing that it is not rigid, not fixed shape, no fixed volume. Now in this unit, as we are observing the unit name as the crystal structure, what we need to think about the solid. Okay, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, we are converting these liquids into liquid form, gas form. But what happens? We need to think about the solids only. See, what is this solids? क्या है आपके पास? Solid को आप define कर रखे हैं. Solid if the some atoms are arranged in random manner. Atoms को आप देख रहे हैं, आप ये सेकंड फिगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके जो एटम्स है, आपने उसको क्या किया है? रैंडम मैनर्स में अरेंज किया हुआ है. कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने एटम्स को क्या किया है? रैंडम मैनर्स में अरेंज करके रखा हुआ है. उनसे कि आप यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, ये पार्ट पे आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एमॉर्फस, आप उसे जो नाम दे रहे हैं कि उसमें रैंडम मैनर्स में, जिससे आपने बहुत बार मूवी देखते समय आपने देखा होगा कि एखादा कोई ना कोई पर्सन आता है और क्या करते हैं कि एक छोटा सा हाथ मारते हैं, उसके आगे के जो कांच होता है ब्रेक होता है. Why? They are using the amorphous material. इसमें आप क्या देखते हैं कि it is and somewhere amorphous आप स्ट्रक्चर वहां पर ऑब्जर्व करते हैं. amorphous स्ट्रक्चर आप कहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि दैट इज इन सॉलिड टाइप में amorphous स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट जो आप देखते हैं, दैट इज द रैंडम फैशन समवेयर एनीवेयर, कि जैसे कि आप कहीं ना कहीं पर उसे पुट कर सकते हैं. दैट इज द amorphous मटेरियल वी आर एबल टू से. बट इन द सेकंड टाइप जो आप देख रहे हैं कि इफ द एटम्स आर अरेंज्ड विथ पीरियोडिक अरेंजमेंट, ओके, आप उसे आप क्या कहते हैं कि पीरियोडिक अरेंजमेंट में आपने अगर मटेरियल को पुट अप करते हैं, पीरियोडिक अरेंजमेंट में आप करते हैं कि जैसे कि आपका आजकल आप जो कहते हैं कि यू आर यूजिंग द ग्लासेस में आप डिफरेंट ग्लासेस देखते हैं. आप आजकल टफन ग्लासेस देखते हैं. आपके मोबाइल पर कौन सा यूज होता है कि यू आर गोइंग टू से टफन ग्लास, कि जिसका स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, अवेलेबल होता है. तो उस टफ ग्लास में क्या होता है कि परफेक्टली अलाइन होता है. दैट इज वी आर एबल टू से इट इज एन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इफ द एटम्स आर अरेंज्ड विथ रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड आप उसे कहते हैं. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड टाइप्स आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं. टू टाइप्स सॉलिड्स आप डिफाइन करते हैं. और कोई आपको सॉलिड्स पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं? एनी एग्जांपल्स? हेलो फ्रेंड्स, आर गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Examples sir. you know about the amorphous solid और crystalline solid में पता है आपको? कौन से examples पता है? Clay. Yes. Chalk. Chalk कौन से फॉर्म में आता है? Chalk कौन से फॉर्म में आता है? Amorphous स्ट्रक्चर में आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है. Amorphous स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलता है. और एक क्रिस्टलाइन का Diamond. Sodium chloride. NaCl, sodium chloride. NaCl, yes, NaCl, sugar crystals, आप जो ये सभी देखते हैं, ये कहीं ना कहीं पर क्रिस्टलाइन में आप उसे कहते हैं. Okay, so these are the different solids types we are observing in nature. Now, we need to think about the crystal structure. क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलता है? जैसे कि आप लास्ट फिगर में देख रहे हैं कि क्रिस्टलाइन में क्या दिखाई दे रहा है, हाउ दे आर अरेंजिंग, कि आप उसके अरेंजमेंट किस तरह से देख रहे हैं. वन बाय वन लाइन में उनके अरेंजमेंट कहीं ना कहीं पर फिक्स देखते हुए जा रहे हैं इन लाइंस में. ओके, सो हाउ वी आर एबल टू डिफाइन देम, कि उसको डिफाइन करने के लिए इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ईच एटम और मॉलिक्यूल is fixed at definite point. Okay, कहीं ना कहीं पर एक डेफिनेट पॉइंट पर आप क्या कर रहे हैं, उसको यूज करते हुए जा रहे हैं.
You are using somewhere at definite distance, definite orientation to other atoms. उसे आप कहीं ना कहीं पर क्या कह रहे हैं कि दैट इज द आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करता है। और परफेक्टली अगर डिफाइन करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी डिफाइंड एज सॉलिड कंपोज थ्री डायमेंशनल पैटर्न, फॉर्मिंग थ्री डायमेंशनल पैटर्न। उसे आप कहते हैं कहीं ना कहीं पर आप कहते हैं उसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब सिंपल एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। नहीं तुमचे लेक्चर काय डिस्टर्ब झालं? मोबाईलवरून जॉईन केले मी आता CRD साठी मी लिंक पाठवली. नाही हो accept कर. हेलो Yes, sir. यस सर. हाँ, तो ये हम थ्री पैटर्न में हम कहीं ना कहीं पर देख सकते हैं। अभी मैं उसे आपको वीडियो पर अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। Are you getting the camera view? No. Hello? No, sir. No. No, sir. नो सर. No, sir. ये अभी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम जो Yes, sir, yes, sir. दिखाई दे रहे थे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वी आर आई एम अरेंजिंग दिस आइटम्स. ओके, ये आइटम्स को मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अभी एक इसे मैं ये डिफाइन करते समय एक यूनिट सेल कहता हूँ. यूनिट सेल को मुझे डिफाइन करना है आपको, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इन आइटम्स को कहीं ना कहीं पर परफेक्टली अरेंज करते हुए जाता हूँ. तो मैं उसे क्या कहते हैं कि उससे मैं कहीं ना कहीं पर नाम देता हूँ, सॉलिड का नाम प्रोवाइड करता हूँ. जिसमें क्या कर सकते हैं हम इन आइटम्स को, कि जैसे ये आइटम को एक साथ कहीं ना कहीं पर मैं इसको अरेंज करना है, तो आई एम एबल टू सी इट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. लेकिन अमोर्फस में क्या होगा, ये मेरे आइटम्स है, ऑल दीज आर आइटम्स. इस तरह से ये कहीं पर भी रैंडमली पुट अप किए हुए, दैट इज नथिंग बट माय अमोर्फस सॉलिड. तो यहाँ आपने जो दो डेफिनेशन देखे, दैट इज सॉलिड टाइप में क्रिस्टलाइन, अमोर्फस, और उसे आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. A crystal can be defined as solid composed periodic array of atoms or molecules forming dimensional pattern. तो ये कहीं ना कहीं पर आपका ये डायमेंशनल पैटर्न आपका क्रिएट होते हो जाएगा. यू आर ऑब्जर्विंग जिसमें ये एंड डायमेंशनल पैटर्न, ये डायमेंशनल पैटर्न में आपको कहीं ना कहीं पर मैं इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ. इस तरह से ये पैटर्न आपका 3D डायमेंशन में हर जगह पर ये
हुए जाता है। So I am able to provide this dimensional okay. Now वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, think that वॉइस ब्रेक हो रहा I है. need to think about space lattice and the base that I will show you. Space lattice. Okay. तो आप जो डिस्कस कर रहे थे अभी, नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट द स्पेस लैटिस. ओके, स्पेस लैटिस किस तरह से होता है इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर. स्पेस लैटिस में आपको एटम्स, और आप स्पेस लैटिस किसे कहते हैं? Some dots. ये डॉट्स आप याद होगा आपको, कहीं ना कहीं पर आप एखादे डिजाइन ड्रॉ करते समय आप एखादा डिजाइन ड्रॉ करते समय क्या करते हैं? ये डॉट्स जो है करते हुए जाते हैं, करते हैं. ये स्पेस लैटिस आप इसे कहते हैं. These are the imaginary points. Okay, what happened? That is, you are going to say in crystal structure that are called space lattice. ये स्पेस लैटिस मतलब क्या है? आपका एक इमेजिनरी पार्ट आप ऑब्जर्व करते हैं स्पेस लैटिस. मतलब कहीं ना कहीं पर आप एक डिजाइन ड्रॉ करते समय डॉट्स देते हैं कि यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एक डिजाइन ड्रॉ करना है, तो उसे आप स्पेस लाइट, उसे आप क्या कहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं पर बिफोर ड्राइंग एंड ड्राइंग के बिफोर आप क्या करते हैं, कहीं डॉट्स देते हैं, और उसी को आप यहाँ पर कह सकते हैं दैट इज द स्पेस लैटिस. उसके बाद बेसिस. आप ये कहीं ना कहीं पर असेंबली ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स लोकेटेड एट ईच लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर. मतलब आपका ये कहीं ना कहीं पर एक बेसिक एटम जो है, एक बेसिक एटम जो बोलते हैं आप, उसे कहीं ना कहीं पर इस बेसिक एटम को क्या करना है, स्पेस लैटिस में पुट अप करते हुए जाना है. क्या करना है आपको? इसको कहीं ना कहीं पर हर एक को एक स्पेस लैटिस में पुट अप करते हुए जाना है. उसे आप क्या कहते हैं? दैट इज द स्पेस लैटिस आप कहते हैं. बेसिस ऑफ एटम, बेसिस ऑफ एटम्स को क्या कर रहे हैं आप? हर एक स्पेस लैटिस में पुट अप करते हुए जा रहे हैं. सो यू आर एबल टू गेट दिस एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. आपने क्या किया है? जो बेस एटम जो आपने वहां पर दिखाया था, बेस एटम जो दिखाया था, ये ब्लैक डॉट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक डॉट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? एक पर्टिकुलर आइटम है. और रेड आइटम भी क्या है? एक आपका दूसरा आइटम है. इन दोनों से आपका एक कहीं ना कहीं पर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका क्रिएट होते हुए जा रहा है. So, I mean, each basis is identical in composition, arrangement, and orientation of its constituents, atoms or molecules with other bases. Okay, crystal with single atom. अगर black dot सिर्फ रहता होता तो मैं इसे क्या कहता हूँ? Single atom as the basis are called monoatomic. लेकिन यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको मैं यहाँ पर जो डिफाइन कर रहा हूँ, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं कि ब्लैक डॉट रेड डॉट, ब्लैक डॉट रेड डॉट, इस तरह से आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं. और यहाँ पर मैं ये क्या कहता हूँ? दोज विथ टू एटम्स you are observing, and the basis is called diatomic crystal structure. So this one is the, जो आपको मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाया, दैट इज द डायटोमिक. अगर ब्लैक डॉट सिर्फ रहते या रेड डॉट सिर्फ रहते तो क्या होता था? यस, एनीवन? मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक आपका सिर्फ रेड या ब्लैक रहता था तो मोनोएटॉमिक, और दो एटम्स रहते तो डायटोमिक आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है.
So it is an actual crystal structure. Now what I need to think, आप जो यहाँ पर जो सभी स्टडी करने वाले हैं, what is important in the part of engineering part, आप जो देखना चाहते हैं, that is the unit cell. This is the most important thing, that is in engineering की unit cell is the most important thing. कि आपको जैसे मैंने अभी आपको वीडियो ऑन करके क्या दिखाया था कि आपको कुछ बॉक्सेस दिखाए थे, या आप कोई भी एक स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं, खाली बिल्डिंग कंसीडर कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में वर्ड क्या दिया, यूनिट सेल. क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कन्वीनियंट, सब डिवाइड द स्पेसलेस स्पेस इनटू एलिमेंट्री एंड इट्स आइडेंटिकल स्ट्रक्चर यूनिट्स कॉल्ड द यूनिट सेल. जैसे आप बहुत बार क्या देखते हैं कि आपका एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग देखते हैं, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग देखते हैं. बिल्डिंग को डिफाइन करते समय आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं उसे फ्लैट, ओके, एक आपका बिल्डिंग में एक पर्टिकुलर फ्लैट नंबर A1, A2, A3, A4 आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, और उस फ्लैट में भी आप डिफरेंटली रूम का नॉमेनक्लेचर करते हैं. किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं आप रूम को? यस, हेलो, बिल्डिंग में आपके फ्लैट को नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं? How you are going to nomenclature the building? बिल्डिंग में रूम्स को पहले फ्लैट वालों को 101, 102, दूसरे फ्लैट वाले को 200 से स्टार्ट करते हैं. यस, अब 101 नंबर का फ्लैट आप डिफाइन करें, यू आर डिफाइनिंग 101 रूम डिफाइन करते हैं, दैट इज योर सिंगल हॉल, बेडरूम, किचन और चिल्ड्रंस रूम. इस तरह से आप कहीं ना कहीं फिर फ्लैट में क्या करते हैं, आप एक एक रूम को नाम देते हैं. यस, आई एम राइट? तो उसी तरह से यूनिट सेल में आपके कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हो कि यू आर डिफाइनिंग वन यूनिट सेल, कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में आप देख रहे हैं. सॉलिड मटेरियल में देखते समय आप कहीं ना कहीं पर आपको क्या दिखाने की जरूरत होती है कि दैट इज हाउ you are going to define a particular unit cell. Okay, so smallest geometrical unit repeated identically in space, which is nothing but unit cell. जैसे कि आपकी बिल्डिंग्स में हर जगह पर कहीं ना कहीं पर छोटे छोटे रूम्स कंस्ट्रक्ट किए, इट्स साइज में भी 10 by 15, 10 by 12, 10 by 8, 10 by 10, whatever you are defining. But what happens, that is the one of the smallest unit. एक फ्लैट आपका एक स्मॉल यूनिट से तैयार होता है, जैसे आप उसे नाम देते हैं किचन, हॉल और बेडरूम. किचन, हॉल एंड बेडरूम, इस तरह से स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल यूनिट से आप उसका रिपीटेशन क्या होता है? उसका रिपीटेशन होता है एक फ्लैट का 10 फ्लैट का रिपीटेशन, 100 फ्लैट का रिपीटेशन आपका क्या होता है? वन बिल्डिंग. One building is nothing but you are just a crystal structure. एक बिल्डिंग मतलब क्या हो रहा है? That is nothing but a crystal structure. तो ये atoms, तो smallest group of atoms which where overall symmetry, repetition in 3 dimensions, your crystal structure, और उसी में आप उस एक छोटी सी रूम जो आप डिफाइन कर रहे हैं उसे मैं यहाँ पर नाम क्या दे रहा हूँ? यूनिट सेल नाम दे रहा हूँ. हाउ आई एम एबल टू से, क्या मेंशन किया है मैंने लैटिस पैरामीटर्स में? हेलो, सर लैटिस पैरामीटर्स को किस तरह से डिफाइन किया है मैंने? ABC एक्सेल लेंथ. हाँ, क्या दिखाई दे रहा है? ABC मतलब क्या दिखाई दे रहा है? दैट इज ABC लेंथ, साइज ऑफ द पैरामीटर. ABC सर वो लेंथ एक्सेल पर्टिकुलर एक्सिस में लेंथ है, पर्टिकुलर एक्सिस में लेंथ है. व्हेनेवर आई एम गोइंग टू से इट इज यूनिट सेल. यूनिट सेल का मतलब ABC की लेंथ किस तरह से हो सकती है? सेम तीनों साइड Same. ABC is nothing but the same. A is equal to B, B is equal to C. And alpha, beta, gamma का angles क्या हो सकता है यहाँ पर? What is the? Yes, 90 degree. alpha, beta, gamma.
means whenever you are able to define this unit cell, okay, what you are able to say that is axial length A is equal to B is equal to C. So remember this one, unit cell में आप जब भी कहीं ना कहीं पर axial length define करेंगे, कहीं ना कहीं पर आपको आगे चलकर you are observing the numericals, you are observing the numericals on this basis unit cell. तो यूनिट सेल को आप जब भी डिफाइन करते हैं या उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, तो इन दैट केस you are able to say that in unit cell that is axial length ABC is somewhere same A is and the angles alpha beta gamma is equal to 90 degree. The length of cube H is called lattice parameter. Okay, remember this one. This may be in your fill in the blanks, the questions. Length of cube H, that is A आप वहां पर डिफाइन कर रहे हैं, इसे आप क्या कहते हैं? Okay, that is nothing but the lattice parameter of the lattice constant. That is nothing but the lattice parameter of lattice constant of cubic unit cell. Question may be like this one: what is the what are the parameters for cubic unit cell? That is the lattice parameter आप कह सकते हैं या axial angles भी आप यहाँ पर कह सकते हैं. Okay, so this is the cubic. Now we'll see what are the unit cell parameters. What are the unit cell parameters? Unit cell parameters में आप कहीं ना कहीं पर ऑब्जर्व करेंगे volume of unit cell, which is mentioned in the above formula, that is V is equal to A cube, which is nothing but the volume of unit cell. That is three lanes you are observing A, B, C. आप वहाँ पर जो define कर रहे थे, that is nothing but the volume of unit cell, which is represented which is using V is equal to A cube. Why we need to calculate this volume of unit cell? सेल आप जो दिखाई दे रहे हैं वहां पर मेंशन कर रहे हैं, उसमें कितने एटम्स वहां पर क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं. ओके, जितना आप जो आप डिफाइन करते हैं कि आजकल जो आप डिफाइन कर रहे हैं ग्लासेस में आप ऑब्जर्व करते हैं या डिफरेंट मटेरियल्स ऑब्जर्व करते हैं, ग्लास की स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड्स होगी? एनी आइडिया? ग्लास की स्ट्रेंथ किस तरह से डिपेंडेंट होगी? Your volume of unit cell, why it is important while designing any glass or while designing any electronics component? Anyone? Hello? सर एक बार रिपीट करो ना, वॉइस ब्रेक हो रहा है. Sir? Anyone? Okay. Volume of unit cell का रिलेशन आपके मटेरियल के साथ किस तरह? सर वॉइड पता करने के लिए वॉइड. यस, बोलिए. सर वॉइड पता करने के लिए, अनऑक्यूपाइड स्पेस. वॉइड पता करने के लिए. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब वॉइड मतलब क्या एग्जैक्टली? कि इफ यू आर गोइंग टू से वॉइड मींस क्या है कि आपके नंबर ऑफ एटम्स. यस Sir, unoccupied space by the atom in the unit cell called as void. Okay, unoccupied atom. Yes, unoccupied volume of atoms in particular space आप जो कह सकते हैं, या आप जनरली आप जो ये डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे आप मटेरियल की स्ट्रेंथ देखते हैं, मटेरियल की स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड्स होती है कि आप अगर एक छोटे से वॉल्यूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखते हैं कि आपका उस स्मॉल वॉल्यूम में मैक्सिमम आइटम्स आपने एक जगह पर करके रखेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? स्ट्रेंथ इज समवेयर मोर, स्ट्रेंथ इज समवेयर मोर. जैसे कि आप सिंपली देखते हैं कि आप ग्लास की स्पीड डिफाइन करते समय देखते हैं कि आपके मोबाइल का ग्लास आपको याद होगा, पहले जो कुछ हम मोबाइल यूज करते थे कि 2010 to 2012-14 तक, वो मोबाइल जैसे ही नीचे गिरता था इमीडिएटली क्या होता था, उसका स्क्रीन कहीं ना कहीं पर ब्रेक होता था. लेकिन आजकल मोबाइल परचेस करते समय आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया होता है कि दे आर प्रोवाइडिंग द टफन ग्लास. टफन ग्लास मींस दे आर कनेक्टिंग
all the atoms in small space, and that's what happened. You are observing the strength of that glass is going to be particularly increased. पर्टिकुलरली उसके बाद आप बुलेट प्रूफ ग्लास देखते हैं या बुलेट प्रूफ मटेरियल देखते हैं, कहीं ना कहीं पर इस बुलेट प्रूफ मटेरियल का आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल उसमें कहीं पर भी छोटा सा भी गैप प्रोवाइड नहीं करते कि जिससे आपके एटम्स जल्दी से ब्रेक हो सके। दे आर कनेक्टिंग एक छोटे से वॉल्यूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या करते हैं कि दे आर प्रोवाइडिंग ऑल द एटम्स इन अ स्मॉल स्पेस, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। If they are able to put maximum number of atoms in a small unit cell, okay, maximum number of atoms they are putting in small unit cell, then what happens? They are able to say that it's a bulletproof glass, means that atoms are not able to move anywhere. How much energy are applied? बहुत energy, कितनी भी energy आप apply करो on bulletproof glass, what happens? These atoms are not going to leave its relation. They are putting their hands with each other with a very strong strength. Okay, so that is the volume of unit cell. The next one, that is you are defining number of atoms of a unit cell. आप यहाँ पर देख लीजिए that is NC, number of atoms at corner of unit cell. Then number of atoms at the corner of unit cell and number of atoms at the बॉडी सेंटर्ड। तो अभी यहाँ पर आपको मैं कैमरा में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में आप किस तरह से उसे ऑब्जर्व करते हैं। So I will show you how we are able to observe strength. आवाज नहीं आ रही सर, कट के आ रही है आवाज। सर आवाज लैग हो रहा है। सर लैग हो रहा This is है, लैग हो रहा है particularly बहुत। one unit cell. नहीं नहीं कुछ नहीं आवाज दिख नहीं आ रहा रहा है, है। पूरा ब्लर ब्लर दिख रहा है। सर ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है पूरा। अभी नहीं नहीं सर दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट ब्लर दिख रहा है। अब दिख रहा है इमेज सर। नहीं दिखाई दे रही मेरी, दिख रहा है? अब गया होगा फिर से। अब दिखाई दे रहा है? ये इमेज वीडियो दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर। ब्लर दिख रहा है सर। Yes, sir. This is particularly one unit से। ये आप ब्लर दिख रहा है। दिखेगा, आपको कुछ ना कुछ इमेज ट्रांसमिट होने के लिए कुछ टाइम लग सकता है, दैट इज डिले यू आर ऑब्जर्विंग। सो दिस इज पर्टिकुलरली वन यूनिट से। ये आपका एक यूनिट सेल आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, दिस इज वन ऑफ द यूनिट सेल विच यू आर ऑब्जर्विंग। कि जो आपको मैंने यूनिट सेल डिफाइन किया था, ये कहीं ना कहीं पर यूनिट सेल आप उसको कह रहे हैं। तो आप इस यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किस तरह से कहेंगे कि अभी सिंपली ये देखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद इस साइड में देखेंगे तो 5 6 7 8, मतलब आपका वॉल्यूम निकालने के लिए कहीं ना कहीं पर आपका ये। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में ये डिफाइन करना। तो अभी क्या होगा, ये कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल कितने, मैंने 8 कॉर्नर्स के 8 एटम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे। देन फेसिस में
ये एक फेस हुआ, ये सेकंड फेस हुआ, ये थर्ड फेस हुआ, ये फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस, सिक्स्थ फेस। तो कहीं ना कहीं पर आपके हर एक फेस पर एक आइटम अवेलेबल है, एक आइटम आपका अवेलेबल है। तो वी आर एबल टू से नंबर ऑफ आइटम्स एट द फेस ऑफ यूनिट से। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पर बॉडी सेंटर्ड में एक आइटम देखना, ओके। तो वो इसमें ही, इसके बॉडी के सेंटर में भी क्या होता है, एक आइटम अवेलेबल होता है, उसे आप क्या कहते हैं, आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आप कह सकते हैं कि दैट इज बॉडी के सेंटर में कहीं ना कहीं पर क्या है कि आपका एक आइटम अवेलेबल होता है, दैट इज नथिंग बट द बॉडी सेंटर्ड आइटम आप उसे कहते हैं। देन वी नीड टू थिंक अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? कि आपका दिस इज द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एटम दैट एनी क्रिस्टल हैज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पर हमको या सिंपली हम इस एटम को कहता हो कि इसको कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर्स जो है इस बॉडी सेंटर्ड आइटम को कौन से सबसे नजदीक रहेंगे? तो हो सकता है 1 2 3 4 आप यहाँ पर कह सकते हैं, मगर उससे भी ज्यादा आपको इनसे ज्यादा कौन से आइटम्स है उसे आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स दैट एनी एटम हैज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उसे आप क्या कह रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर के इस एटम को मैक्सिममली कौन ज्यादा कोऑर्डिनेट कर सकता है, कौन इमीडिएटली क्या कर सकता है, कुछ ना कुछ उसको नेबरिंग के लिए। मतलब क्या होता है कि बहुत बार आप, जिस मैंने आपको अभी कहा था कि दैट इज यू आर गोइंग टू से कि ग्लास इज गोइंग टू बी ब्रेक, ग्लास को ब्रेक नहीं होने देना है, तो कहीं ना कहीं पर इनका कोऑर्डिनेशन चाहिए। जैसे आप सिंपली टगा फॉर खेलते हैं, याद है आपको टगा फॉर? क्या करते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर पकड़कर दोनों तरफ से खींचने की कोशिश करते हैं। तो इन दैट केस कि आप अगर इसे कह रहे कि ये दोनों हाथ है, तो ये दोनों हाथ की एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगी कि अगर मैं ये सिंपली सिंगल यहाँ पर यूज करूंगा फिंगर तो क्या होगा, पावर ज्यादा नहीं होगा। बट इफ आई एम यूजिंग द 2 फिंगर्स, जैसे जैसे मैं फिंगर्स को कहीं ना कहीं पर इंक्रीज करते हुए जाऊंगा, व्हाट हैपन, आई एम एबल टू गेट दैट कहीं ना कहीं पर आपका कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं पर क्या होगा। आप अगर ये पूरा हाथ अगर रहेगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन किसको मिलेगा, जिसमें भी मिडिल फिंगर को कोऑर्डिनेशन मिल सकता है, क्योंकि इसके आजू बाजू के फिंगर्स जो है आपको कहीं ना कहीं पर सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए यूजफुल होते हैं। तो सिमिलरली हियर आल्सो one of the atom may get the maximum coordination from other atoms, that is nothing but and coordination number. Okay, मैं आपको आज तो अपना उतना डिस्कशन नहीं हो सका, बट इन नेक्स्ट लेक्चर आई मे कंडक्ट एन एक्स्ट्रा लेक्चर। ओके, आपका नेक्स्ट इसमें अभी देखते हैं कि एक्स्ट्रा लेक्चर कब कंडक्ट कर सकते हैं, उस तरह से कंडक्शन का। आज का थोड़ा बहुत पार्ट समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. डाउट्स है? यस एनी सर। डाउट्स? Yes, sir. डाउट से कुछ क्या क्या डिस्कस किया sir. आज आपने? ये बोलो। सर, यस, यूनिट सेल सर क्यूबिक शेप में क्यों रहेगा सर? और भी सर शेप में हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। हमने क्या क्यूबिक स्पेस में नहीं, हमारे पास नियर अबाउट 14 टाइप से की, जैसे कि क्यूबिक कहते हैं, टेट्रागोनल कहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं, हेक्सागोनल रहता है, मोनोक्लिनिक रहता है, ट्राइक्लिनिक, इसमें भी Triclinic. यस बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबल Sir, वेरिएशन। brevislate is ना? yes, बहुत सारी वेरिएशंस है, बट बेसिकली व्हेन आई वांट टू एक्सप्लेन दिस वन, ये शेप में आपका एक्सप्लेनेशन बहुत क्या होगा, सिंपली होगा। मगर बाकी के इसमें अभी मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो क्या होगा कि उतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा। बट ऑन दिस सिस्टम कि वी में एक्सप्लेन वन बाय वन, हम उसका देखते हुए जाएंगे कि अभी ब्रेविस लैटिस क्रिस्टल सिस्टम में आप कहीं ना कहीं पर उनके पॉसिबल वेरिएशंस ऑब्जर्व करेंगे। दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स। लेकिन अभी सिंपली अभी हमारे जो सिलेबस में जो अवेलेबल है, हम मैक्सिमली क्यूबिक स्ट्रक्चर पर ही क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं। ओके, सो क्लियर आदित्य, इज इट क्लियर? यस सर। ओके,
हम डिस्कस करेंगे, Yes, बाकी sir. के पार्ट में डिस्कस करेंगे, यस सर। लेकिन उसको उतने डिटेल में डिस्कस नहीं करना है हमें। शॉर्ट में ही क्यूबिक और न्यूमेरिकल्स, अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उस वक्त आपकी नोटबुक आपके साथ होनी चाहिए, पेन आपके साथ होनी चाहिए, बिकॉज वी नीड टू ड्रॉ द यूनिट स्ट्रक्चर्स। कहीं ना कहीं पर हमें यूनिट स्ट्रक्चर के डायरेक्शंस ऑब्जर्व करने हैं, देन वी नीड टू ऑब्जर्व द प्लेन्स आल्सो। कहीं ना कहीं पर हमें प्लेन्स को, अभी जैसे सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं पर इस प्लेन में कितने एटम्स है, कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमें कहीं ना कहीं पर कैलकुलेट करना है। दैट वी नीड टू, ये भी आपका एक, ये भी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, 3 प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं इसमें, ओके, ऑल दीज आर पैरेलल्स टू ईच अदर, दैट वी नीड टू ऑब्जर्व कि किस तरह से ये प्लेन्स है और हाउ दिस प्लेन्स आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट विद फ्यू एटम्स, उसको हमें कहीं ना कहीं पर डिस्कस करेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पार्ट देखेंगे क्या करना है। Okay. हेलो सर। So yes, दिशा, yes. सर हमारा यूनिट टेस्ट कब होगा, लाइक जो एग्जाम है अभी? यूनिट टेस्ट करिए असेल आपने जल्दी, एक 15 डेज और 20 डेज में होगा, टाइम टेबल आपको मिलेगा। और सर कॉलेज कब खुलेगा? No, we don't have any idea. Now the condition is going to be changed again. हेलो सर। That is it. सर तो ऑफलाइन Yes. होके ऑनलाइन होगा सर। टेस्ट? सर Maybe अटेंडेंस online. अटेंडेंस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि कैसे होता है, आप गूगल लॉगिन पर जैसे ही आ जाते हो, how many times you leave the room, how many times you join the room, automatically I will get the attendance. You don't worry about the attendance part. Sir, Attendance is What about automatically recorded test on book? textbooks. You are able to get from a college, or you need to buy, or otherwise I will provide you notes. आपको प्रोवाइड करूंगा, या आपका जो पीपीटीज में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उन पीपीटीज को आपको शेयर करते हैं, दैट में हेल्प योर रेगुलर स्टडी। सर बाय करने के लिए टेक्स्ट बुक कौन सी लेनी है, कौन से कंपनी की? कौन सी भी ले सकते, टेक मैक्स से, थैंक यू सर। मैक्स से, नो नोट्स के लिए अभी लो, ये बुक लो या वो बुक लो, मैं कह नहीं सकता, बट यू कैन बाय टेक मैक्स बुक, जैसे कि अभी इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय स्वाति बावरा भी है, उससे भी आप परचेस कर सकते हैं। सर एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? शायद तो ऑनलाइन ही होगा, 99% ऑनलाइन हो गया एग्जाम। योर नेक्स्ट लेक्चर इज गिवन बाय योर डीन यफी। She may know the test type and test dates and how they are going to conduct. सर फिर तो सब टॉप करेंगे। Yes. What are you saying? सर फिर तो सब टॉप करेंगे। Oh yes, Sujal, you are right. Maybe all the students will get प्रोवाइड करता हूँ। अरे दूसरा तो लेक्चर यार, थोड़ा एक कुछ देर तो वेट करो। सर क्लासरूम पे प्रोवाइड करना? क्लासरूम पे प्रोवाइड करूंगा, व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करूंगा, ईमेल पर प्रोवाइड होगा, सब जगह पर आपको। सर डीएन मैम ने बोला था पहले ही दिन से स्टडी करो, इसलिए नोट्स मांग रहे हैं। Yes. I'm going to provide the notes. Yes, today or back then tomorrow you will get the notes, all the notes. सर एक्सक्यूज मी सर। Yes, बोलो। सर आप ऑफिशियल ग्रुप में पीपीटी सेंड करोगे? उसमें कैसा होगा कि उसमें, हाँ ठीक है, उसमें भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आस्तिक, stop. I think the next lecture is for Madam. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Sorry for